السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کا ساتھ دوں گا محمد انیس۔ کھیلوں میں اہم خبروں کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ نے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ خبرنامے میں آپ کو آگاہ کریں گے موسم کی بدلتی صورتحال سے۔ فی الوقت آپ کو واپس لیے چلیں گے مینڈس کی جانب۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ شکایت نہیں ہے جی، بہت اچھا عملہ ہے، تو صحیح تعاون کر رہے ہیں، بہترین قسم کا۔ ہمارا جیسا بوڑھا آدمی آتا ہے اسے پہلے دے دیتے ہیں۔ آپ تو جوان ہیں ماشاءاللہ، بڑی مہربانی، شکریہ۔ معاشی چیلنجز کے باوجود 10 کروڑ افراد کو مفت آٹے کی فراہمی کا عمل جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا راولپنڈی میں ڈسٹریبیوشن مراکز کا دورہ، مفت آٹے کی فراہمی میں حائل مشکلات کا جائزہ لیا۔ ایسے گھرانے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں، انہیں بھی آٹے کے 3 تھیلے مفت دینے کا اعلان۔ ملک کی تعمیر کے لیے سیاسی قیادت اور تمام اداروں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، وزیر اعظم۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سیالکوٹ کا دورہ، حکام کی جانب سے مفت آٹے کی فراہمی کے بارے میں بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کا جعلی ٹوکن پر آٹا لینے کی شکایت پر تحقیقات کا حکم، مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ ملک میں فتنہ اور انتشار عمران نیازی کا ایجنڈا، جس نے بھی اس شخص کی سہولت کاری کی، بدنامی اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ اس شیطانی کھیل کی حوصلہ افزائی کرنے والا اس کا حصہ تصور ہوگا۔ نواز شریف کے خلاف غیر منصفانہ انتقامی فیصلے اور گواہیاں عوام کے سامنے لائیں گے، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ عمران خان فاشسٹ اور آئین شکن ہے، ایک شخص کے کہنے پر 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دی گئیں، کسی نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ عمران خان کو کسی صورت فرار کا راستہ نہیں دیں گے، ہم اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے۔ محمد نواز شریف کے خلاف کرپشن کا ایک بھی کیس ثابت نہیں کیا جا سکا، انہیں انصاف کون دے گا؟ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 اکتوبر کی تاریخ منطقی اور ملکی استحکام کے لیے درست فیصلہ ہے۔ افراتفری سے بچنے کے لیے ضروری ہے ملک میں ایک ساتھ عام انتخابات ہوں۔ جذباتی اور ہیجانی کیفیت میں لیے گئے فیصلے نقصان دہ ہوں گے۔ مسائل کے حل کے لیے اجتماعی دانش اور یکسوئی کی ضرورت ہے۔ ادارے، سیاسی جماعتیں اور عدلیہ حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان قائرہ۔ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کا معاملہ، سپریم کورٹ میں نئی تاریخ کے خلاف درخواستوں کی سماعت، الیکشن کمیشن اور وفاق سمیت متعلقہ فریقوں کو نوٹس۔ پرامن الیکشن کے لیے حکومتی جماعتوں اور تحریک انصاف سے یقین دہانی طلب، صاف اور شفاف انتخابات کے لیے حالات کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک میں امن و امان کے قیام اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس کے 1 مین پاور شو کے اختیار پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ از خود نوٹس اختیار کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانا ہوگی۔ عدالت عظمیٰ اپنا اختیاراتی ڈھانچہ بنانے میں ناکام رہی ہے۔ عدالت کا دائرہ اختیار ججز کی خواہش یا آسانی نہیں، آئین طے کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پارلیمنٹ کے اختیارات محدود نہ ہوں۔ پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار اور ہجان کے سوا کچھ نہیں کیا، ریاست مدینہ کے دعوے دار کے بچے آکسفورڈ میں زیر تعلیم ہیں، ملک کے خلاف ہر سازش ناکام بنا دیں گے، وزیر مواصلات اسد محمود۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، نہتے کشمیریوں کی زندگی اجیرن، قابض فوج کی سحر اور افطار کے اوقات میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، حریت کانفرنس کا عالمی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔
सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अल्लाहियान का रमज़ानुल मुबारक में मुलाकात पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का फैसला। कल से मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 29 से 31 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तेज हवाओं और जालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान T20 सीरीज, दोनों टीमें तीसरे और आखिरी मैच में शारजा में मध्य मुकाबिल। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अफगान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी चैलेंजेस के बावजूद 10 करोड़ अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी बड़ा इक़दाम है। जो घराने BISP में रजिस्टर्ड नहीं, उन्हें भी 3 थैले मुफ्त फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की रावलपिंडी में मुफ्त आटे की फराहमी के मराकज़ के दौरे की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। रावलपिंडी में मुफ्त आटे की फराहमी के मरकज के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कम आमदन वाले अफराद को मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक पहला मौका है कि इस तरह का मंसूबा उसको लॉन्च किया गया और एक बहुत बड़ा चैलेंज, ज़ात खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंशाअल्लाह इसको कामयाब करने के लिए ये निज़ाम में हर घंटे हर दिन इसमें बहुत बेहतरी आ रही है। और जिन्होंने अभी तक एक भी थैला नहीं लिया, कल से उनको यकमुश्त 3 थैले मिलेंगे फ्री, ताकि उनको 2 बार ना होना पड़े। वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब में 10 करोड़ के करीब अफराद मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। इन लोगों को भी मुफ्त आटा दिया जा रहा है जिनका BISP में डाटा अंदराज नहीं। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बिस्प के रिकॉर्ड में नहीं हैं, लेकिन वो भी ख़ते इफ़लास से कम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इंशाअल्लाह ये सिस्टम पूरी तरह ऑपरेट हो जाएगा। इट विल बी ऑपरेशनल। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आपका नाम नहीं है या आपका इंदराज नहीं है, उनके लिए अब वहाँ पर अलहदा काउंटर्स खोले जाएंगे, उनका वहीं इंदराज होगा और उनको इंशाअल्लाह ये जो फ्री आटा जो है ये उनको मुहैया किया जा सकेगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आटे के मरकज का दौरा किया और फर्दन लोगों के पास गए और इनसे इंतजामात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौका पर दरपेश मसाइल के हल के लिए हदायत जारी की। कोई शिकायत नहीं है जी, बहुत अच्छा मामला है, तो सही ताउन कर रहे हैं, बेहतरीन किस्म का। हमारे जैसा बूढ़ा आदमी आता है उसे पहले दे देते हैं। आप तो जवान है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। लिखना चाहिए आपको कि सब वो लिखा हुआ है सर, बाहर लिखा हुआ है इब्राहिम मजदूर अफराद, वो सामने लिखा हुआ है। क्यों भाई ठीक हो? आपकी अम्मी के साथ आए? ये इसकी वालिदा से ले रही है। आपकी वालिदा, आपको कार्ड दिखाया नहीं आप कार्ड आपने? मुझे ये जो आज जो देखे मैंने जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इशू है इसको एड्रेस करें सर, तमील होगी और इसको ठीक करके दें इंशाल्लाह। ठीक है सर। दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि रावलपिंडी में डिस्ट्रीब्यूशन के 40 पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें से 4 पॉइंट रात 12 बजे तक काम कर रहे हैं। टोटल हमारे 62 सेंटर हैं पूरे जिले में जी, और 10 इस तरह के मेगा सेंटर सर। नहीं और इफ्तारी के बाद कितने चलते हैं? रात 12 में 4 सर। वो जो सरकारी मुलाजम है वो रात को ले लेते हैं सर। जिला रावलपिंडी में 10 बेकर सेंटर के साथ कुल 62 सेंटर्स हैं, जिनमें स्टेडियम रोड, लियाकत बाग, अडयाला रोड और नसीराबाद समेत दीगर मराकज़ शामिल हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर बलूचिस्तान में कुदरती वसाइल से भरपूर इस्तेफादे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में रैकेडिक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क बेस्टोवी की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि रैकेडिक मनसूबे से मुतल्लिक हालिया मुआहिदा दोनों फ्रीकैन के लिए फ़ायदेमंद, जबकि बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इससे तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा।
انہوں نے ہدایت کی کہ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور عمل درآمد کے لیے پروجیکٹ سپورٹ ٹیم قائم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، مواصلات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ حکومت سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات دینے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے پر کام کرنے والے 70% افراد کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ریکوڈیک کمپنی نے علاقے کی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی کے تعاون سے اسکول قائم کر دیا ہے۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بھی کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے بیرک ریکوڈیک مائننگ کمپنی کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے جاری کاموں کی تعریف کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس لاہور میں ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی قائد محمد نواز شریف کے خلاف غیر منصفانہ انتقامی فیصلے اور گواہیاں عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ یہ بھی طے پایا کہ عمران اور اس کے سہولتکاروں کے بارے میں تمام حقائق عوام کے سامنے لاتے ہوئے ان کی کرپشن اور لوٹ مار کو کسی لگی لپٹی کے بغیر بے نقاب کیا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران ماضی بن چکا، ہمیں اب ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے کرپشن مقدمات سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ٹیریان وائٹ، فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ مقدمات میں ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے مقدمے میں آئین اور قانون کی پامالی کو بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ اگر انصاف ہے تو نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی جتنی شہادتیں آ رہی ہیں ابھی تک ترازو کے پلڑے برابر ہو جانے چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 4 سال میں معیشت کو تباہ کیا گیا، 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ ہوا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 10 نکاتی ایجنڈا نہیں دیا بلکہ 10 جھوٹ بولے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ ملک میں فتنہ اور انتشار عمران نیازی کا ایجنڈا ہے، جس نے بھی اس شخص کی سہولت کاری کی، بدنامی اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ اس شیطانی کھیل میں ساتھ دینے والا اس کا حصہ تصور ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ عمران خان سے اقتدار گیا تو اسے مذاکرات یاد آ گئے۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کر رہے تھے۔ اس ملک میں جو ہے صرف سیاسی قوتوں نے حکمرانی نہیں کی، جنہوں نے حکمرانی کی ہے اس میں عدلیہ کے فیصلے بھی شامل ہیں، اس میں ملٹری انٹرونشنز بھی شامل ہیں، اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت حکمرانی کے اندر رہے ہوئے پچھلے 75 سال میں، وہ سارے بیٹھ کے جو ہے یہ ایجنڈا نپٹائیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک فریق جو ہے آج عمران خان کے پاس حکومت نہیں رہی تو مذاکرات شروع ہو گئے۔ جب عمران خان حکومت میں تھا اس وقت کیوں نہیں مذاکرات کرتے؟ اس وقت شہباز شریف نے فلور کے اوپر آفر کی تھے مذاکرات، اس وقت آج اقتدار چھن گیا تو مذاکرات یاد آ گئے اس کو۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی دانش اور یکسوئی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا مطمع نظر ملکی استحکام ہونا چاہیے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقار حیدر۔ ملک میں انتخابات کو لے کر ایک ہجانی کیفیت ہے۔ مکالمے اور مباحثے کے بجائے غصے اور جذبات سے کام لیا جا رہا ہے۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی دانش اور یکسوئی کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ وہ اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے چاہیے پرویز لائی صاحب کہ میں تو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا، خان صاحب توڑوا رہے ہیں۔ الیکشن سے سیاسی استحکام آنا چاہیے۔ تو کیا 2 صوبوں کے اندر الیکشن کرا کے سیاسی استحکام آ جائے گا؟ ہم تو الیکشن سے ٹھہراؤ چاہتے ہیں۔ اب پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں، کے پی میں الیکشن ہو جاتے ہیں، فرض کریں اس کے 2 صورت نکلیں گی نا، یا خان صاحب کی جماعت جیت جائے گی یا ہم جیت جائیں گے۔ اب خان صاحب جیت جائیں گے، مرکز میں ہم بیٹھے ہیں، 2 صوبوں میں بیٹھے ہیں، وہ لڑائی جو پہلے جاری تھی وہ دوبارہ جٹ پڑ جائے گی۔ کیا سیاسی ٹھہراؤ آ جائے گا؟ اور اگر ہم جیت جاتے ہیں تو خان صاحب تو بالکل پہلے بھی نہیں مان رہے، حکومتوں کو، الیکشن کمیشن کو نہیں مان رہے، وہ بھی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ مشیر وزیر اعظم قمر زمان کائرہ نے کہا انتخابات کی مقررہ مدت میں انعقاد کے ساتھ ان کا صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے کچھ وجوہات کی بنا پر صوبائی انتخابات کی تاریخ آگے بڑھائی ہے۔ الیکشن کمیشن خود الیکشن نہیں کرا سکتا۔ الیکشن کمیشن ایک بڑے فورم کے طور پہ سارے عمل کو مانیٹر کرتا ہے، کنڈکٹ کراتا ہے ود دی سپورٹ آف سیکورٹی فورسز، امن و امان کی صورتحال کے لیے، یا سپورٹ سٹاف کے طور پہ پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر، جو عملہ ہوتا ہے الیکشن کا وہ لینا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے وزارت قانون سے یا عدلیہ سے ججز لینے ہوتے ہیں ریٹرننگ افسرز کے طور پہ۔ پھر انہوں نے خزانہ سے پیسے لینے۔ جن اداروں نے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کرانے میں سپورٹ فراہم کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 اپریل کو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔
कमरजमान कायरा का मजीद कहना था कि इदारे, सियासी जमातें और अदलिया से गुजारिश है कि हालात की नज़ाकत देख कर फैसले किए जाएं। जज्बाती और हिजानी कैफियत में लिए गए फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। माहौलियाती तब्दीली के वजीर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान का माशी रोड मैप नई पैकिंग में पुराना चूरन के सिवा कुछ नहीं। ये वही नाम नहाद माशी रोड मैप है जिसने 3.5 साल में मुल्क की मईशत को तबाही की नहज पर पहुंचा दिया। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान का माशी रोड मैप इक़्तिदार में आने की एक अर्जी और निजात दहिंदा बनने की एक और नाकाम कोशिश है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को लगता है कि लोग उनकी बदतरीन कारकर्दगी और तर्ज हुक्मरानी भूल गए हैं। इमरान खान भूल गए होंगे लेकिन लोग नहीं भूले। उन्होंने 18,000 अरब डॉलर का तारीखी कर्जा लेकर मजमूई कर्जा जात को 42,000 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। शहरी रहमान ने कहा कि कर्जा जात में 70% से ज़ायद इजाफे करने वालों को लोग नहीं भूले। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफा करने के दावेदार के अपने दौर में गैर मुल्की सरमायाकारी में 23% कमी हुई। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय टैक्स एम्नेस्टी स्कीम के जरिए अपने ही दोस्त अहबाब को फ़ायदा पहुँचाया और ज़राए इनकलाब के दावेदार ने चीनी, गंदम और दीगर खुराक के बहरान पैदा किए। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। माह सयाम की आमद आमद है। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी। हम और आप इकट्ठे होंगे रमजानुल मुबारक की बरकत समेटने के लिए पीटीवी न्यूज़ पर ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान में। इस ट्रांसमिशन में आपकी मुलाकात कराएंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर्स से, मुमताज़ शख्सियात से कराएंगे जिन्होंने अपने अपने शोबे में कामयाबी हासिल की है। और हम आपके साथ शेयर करेंगे तिब्बी मशवरे, हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स एंड लॉट्स मोर। लेकिन सबसे मजे की बात, हम आपके साथ शेयर करेंगे लाइव कुकिंग में नित नए पकवान जो आप सहरी और अफ्तारी दोनों में बना सकें। माह सयाम में आपने रहना है पीटीवी न्यूज़ के साथ रमजान पाकिस्तान में। रमजान पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन एक बार फिर लाया है रमजानुल मुबारक की खसूसी सहरी नशरियात। रमजान पाकिस्तान, रमजान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम, अवाम के लिए मुफ्त आटे और सस्ते पेट्रोल की सहूलत का ऐलान। रमजानुल मुबारक के दौरान मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी। कम आमदनी वाले खानदान माह मुबारक के दौरान 10 किलो आटे के 3 थैले मुफ्त हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए 100 रुपए फी लीटर की रियायत नाफिजुल अमल होगी।
ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान फाशिस्ट और आइन शिकन है। एक आदमी के कहने पर 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ दी गईं, किसी ने कोई वजह नहीं बताई। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का एक भी केस साबित नहीं किया जा सका, इन्हें इंसाफ कौन देगा। मजीद तफसील बता रहे हैं अवैस कुरैशी। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान ने जो गुनाह किए हैं इनका अदालतों में जाकर सामना करें और जवाब दें। उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियों को बच्चों के खिलौनों की तरह तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान आइन शिकन है जिसने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। साद रफीक ने कहा कि इमरान खान का नवाज शरीफ से कोई मुकाबला नहीं है। चोर और मुजरम बनने के लिए नहीं बैठे हुए हम यहाँ पे। अगर चोरी की तो दिखाओ चोरी किधर की है, क्यों का चोर, क्यों का सिसिलियन माफिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ को इंसाफ किसने देना है जी? वही दें जिन्होंने नाइंसाफी की है। नवाज शरीफ ने कौन सा जुर्म किया था? ये सारी तरक्की उन्हीं के अदवार में तो हुई है। तो ये जो इमरान और उसके सहूलतकार हैं वो उनको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि ऐसे नहीं होगा। अगर आपको एक आईनी तब्दीली के जरिए निकाला जाए तो फिर उसके बाद मजलूम बन के लोगों के सामने आ जाओ मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है जी, अमेरिका की साजिश थी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PIA के जहाज़ों की तज़ीनो आरइश की जा रही है। जल्द PIA की परवाजें बरतानिया और यूरोप के लिए जाना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे की बेहतरी के लिए 100 दिन का प्लान दिया है। इस वक्त ये 2 ट्रेन जो हैं इनको भी हम हाई फाई ट्रेन बनाने के लिए जा रहे हैं ताकि ग्रीन लाइन पे प्रेशर बहुत है पैसेंजर्स का, ताकि उनके लिए ऑप्शंस उनको मिल जाएं कि उस लेवल का सफ़र या उससे करीब उसके लेवल का सफ़र जो है वो बाकी ट्रेन पर भी हो। वजीर रेलवे ने कहा कि इदारों को बचाने के लिए इनके ज़राए आमदन में इजाफा करना होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पाकिस्तान को 2017 की पोजीशन में वापस लाना होगा। अवैस कुरैशी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मंसूर उस्मान अवान को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात किया गया है। सदर ममलिकत ने उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने आर्टिकल 100 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इस्तक़र्री की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की नई तारीख के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन और विफाक समेत मुतल्लिका फरीकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस उमर बिंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन के इनेकाद के लिए हुकूमती जमातों और तहरीक इंसाफ से पुरअमन रहने की यकीन दहानी तलब की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि साफ, शफाफ और बदउनवानी से पाक इंतखाबात के लिए हालात का साजगार होना ज़रूरी है। तमाम सियासी जमातों को मुल्क में अमन व अमान के क़याम और कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। ये परेशान कुन सोच है कि हमारे सियासतदान मुल्क में इस्तेहकाम के लिए क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन का मकसद हुकूमतें बनाना और गिराना नहीं, अवाम के लिए गुड गवर्नेंस है। आइन और कानून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, इनका निफाज खला में नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1988 और 2008 के आम इंतखाबात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर होने की मिसालें मौजूद है, लेकिन वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में इंतखाबात मौखर करने की वजूहात क्या आइन के आर्टिकल 254 की कसौटी पर पूरा उतरती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मामला है, जिसके लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू किया जाना चाहिए था। मामले की समाअत कल फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तफसीली इख्तलाफी नोट में कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस 7 में से 4 जजेस ने मुस्तरद किया, इसलिए अदालती फैसला 4-3 से है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात पर लिए गए अज खुद नोटिस से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा 27 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि यकता हैसियत में चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर नज़रसानी करते हुए उनकी सवाबदीद को कवायद के मुताबिक बनाना होगा और अज खुद नोटिस के इख्तियार के लिए पॉलिसी वसा करना होगी। इख्तिलाफी नोट में मज़ीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अज खुद नोटिस लेने और खुसूसी बेंचेस की तश्कील के वसी इख्तियारात हैं, जिस वजह से अदालत पर तनकीद के साथ इसकी तकरीम में भी कमी होती है। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक अदालत का दायरा इख्तियार जजेस की ख्वाहिश आसानी नहीं बल्कि आइन तय करता है। जजेस को उनकी मंशा के खिलाफ बेंचेस से खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत सियासी इदारा बने तो अवाम में इसकी साख मुतासिर होती है। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियारात महदूद न हो। इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के 23 फरवरी के फैसले से इत्तफाक करते हुए अज खुद नोटिस की कार्रवाई ख़त्म की जाती है और हाई कोर्ट को ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त का 3 रोज़ में फैसला करने की हिदायत की जाती है।
लाहौर हाई कोर्ट ने सैयद मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने शेख रशीद अहमद की तरफ से दायर दरख्वास्त खारिज की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ्रीकैन मुकर्ररा मुद्दत के दौरान निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर नहीं कर सके थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आइन में दिए गए तरीक़ाकार के तहत फैसला किया। इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की फहरिस्त ने इमरान खान के इंस्टीट्यूट की कलई खोल दी है कि उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं। तफसील बता रहे हैं बिलाल शेख। इमरान खान का दावा है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि अदालती रिकॉर्ड कुछ और बताता है। अदालतों में पेश किए जाने वाले सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद, सूबा पंजाब, बलोचिस्तान और FIA में सिर्फ 37 FIR दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में पेश किए जाने वाले बयान हल्फी के मुताबिक 21 मार्च तक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ 23 मुकदमात दर्ज हुए थे। 18 मार्च के नाखुशगवार वाक़े के बाद इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात का इंदराज होने के बाद इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में मजमूई FIRs की तादाद 28 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में ही सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब की जानिब से जमा कराए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 20 मार्च तक सूबे में इमरान खान के खिलाफ सिर्फ 6 मुकदमात दर्ज थे। बलूचिस्तान में इमरान खान के खिलाफ 1 जबकि FIA में 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं। इमरान खान के खिलाफ बेशतर मुकदमात एहतजाज, लोगों को शरपसंदी और तोड़फोड़ पर उकसाने के हैं, जिनमें मुद्दई सरकार नहीं बल्कि आम पाकिस्तानी शहरी हैं। इन मुकदमात में से एक में भी इमरान खान अभी तक अदालती अहकामात के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। PTI और उसके चेयरमैन की जानिब से अदालतों की हुक्म अदूली की रिवायत नई नहीं है। ममनुआ फंडिंग केस में भी तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के खिलाफ 6 दरख्वास्तें दायर की गईं। 8 मरतबा वकील तब्दील किए गए, 21 मरतबा इलेक्शन कमीशन और 24 मरतबा स्क्रूटनी कमेटी के सामने इस्तस्ना मांगा गया। तोशाखाना केस हो या टेरियान केस, इमरान खान कभी दरख्वास्त के नाकाबिल समाअत होने का उज़्र तराशते हैं तो कभी किसी और हीले बहाने से अदालतों से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। बिलाल शेख, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से कहा कि आप पहले इस बात पर मुतमईन करें कि एक फोरम को बाईपास करके यहाँ क्यों आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हज़ारों लोगों के हमरा अदालतों में जाएंगे तो फिर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होगी। आपने ही इस सूरत हाल को बेहतर बनाना है। दौरान समाअत इमरान खान ने रोस्टरम बराकर बोलने की कोशिश की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उन्हें रोक दिया और वापस अपनी नशस्त पर बैठने की हिदायत की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदारत में काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ECC ने रैकेटिक मंसूबे में बलूचिस्तान हुकूमत को 31 मार्च 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक की मुद्दत के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ारत ख़ज़ाना को हुकूमत बलूचिस्तान के लिए 65 अरब रुपये नेशनल बैंक में जमा करवाने की भी हिदायत की गई। कमेटी ने कोविड-19 के इलाज के लिए इंजेक्शन की कीमत में इजाफे को मुस्तरद करते हुए असल कीमत 1892 रुपये बहाल रखने का फैसला किया। ECC ने 54 नई अद्वियात की कीमत मुकर्रर करने और 119 अद्वियात की कीमतों में इजाफे समेत 3 एयरपोर्ट्स की मुजव्वज़ा निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइज़र मुकर्रर करने की समरियों को भी मुअख्खर कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। PTI ने मुल्क में इंतशार और हिजान पैदा करने के सिवा कुछ नहीं किया। इजलास की तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। मजलिस शूरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में अफरा तफरी और मुआशी मसाइल की जिम्मेदार PTI की साबका हुकूमत है, जिसने मुल्क को तकसीम किया और नफरत की सियासत को फरोग दिया। इस कौम को सिवाय गाली सिखाने के, इस कौम को इन्होंने बेलगाम करने के लिए, मादर पिदर आजाद करने के लिए, मगरबी तहजीब उनके हाथ में थमाने के लिए, इसके अलावा इन्होंने कौम की कोई खिदमत नहीं की। तुम्हारा किरदार क्या है? पाकिस्तान भाड़ में जाए और तुम वजीर आजम बन जाओ, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और तुम वजीर आजम नहीं बनोगे। चीन का एतमाद तबाह बर्बाद किया, सऊदी अरब का एतमाद तबाह बर्बाद किया। पाकिस्तान को उस माशी दलदल में फंसा दो कि पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के मजबूर हो जाएं कि इसराइल को तस्लीम कर ले। मौलाना असद महमूद ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। इमरान खान ने अवाम से झूठे वादे किए, वो अपनी किसी बात पर भी पूरा नहीं उतरा। ये जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में इन्होंने अपनी तहरीक का आगाज किया,
ये असल में इलेक्शन के इल्तिवा का जश्न था जो ये मना रहे थे। इनको भी पता है कि हमारे साथ आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा। आप कहते हैं मुल्क की मईशत इन 11 माह में संभालो, 75 साल के 25,000 कर्जे को आप 3.25 साल में 50,000 अरब पर ले गए और मुझे कहते हैं कि 11 माह में, और मैं जमानत देता हूं कि हम आने वाले चंद माह में भी आपको अपनी कारकर्दगी बताएंगे। लेकिन नादान न बनो, जिसके पीछे तुम पैरवी कर रहे हो वो अपनी किसी बात को की लाज नहीं रखता। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि मौसीकी के बगैर पीटीआई कोई जलसा करके दिखाए। अब आवाम को पता चल गया है कि कौन मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहा है। मुश्तरका इजलास से सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने खिताब करते हुए कहा कि महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमत इकदाम करे। मजलिस शूरा का मुश्तरका इजलास 10 अप्रैल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ानुल मुबारक के दौरान वज़ीर आज़म का मुस्तहिक़ अफराद में मुफ्त आटा फराहम करने का प्रोग्राम कामयाबी से जारी है और वज़रा और वज़ीर आला खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के सियालकोट, लाहौर और समरियाल, जबकि वज़ीर तालीम के दौरा शेखुपुरा की तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। किसी भी फलाही प्रोग्राम की कामयाबी का दारोमदार इस पर मिनोअन अमल दरामद में है। यही वजह है कि माह रमजान में मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटा फराहम करने के वज़ीर आज़म के प्रोग्राम पर ज़िला इंतजामिया, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी और सूबाई वज़रा सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर, सियालकोट और समड़ियाल में मुख्तलिफ आटा मराकज़ का दौरा किया और आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत के तारीख साज रमजान रिलीफ पैकेज से शहरियों को हकीकी रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इक़दाम उठा रही है, जिससे शहरियों को मेयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। लाहौर में ठोकर नियाज़ बेग के मॉडल बाजार के दौरे के मौके पर वज़ीर आला ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन न होने के हवाले से शहरियों की शिकायत सुनी और उनके अजाले के लिए इंतजामिया को अहकामात जारी किए। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने शेखुपुरा के इलाके कोट अब्दुल मालिक में आटे की फराहमी के मरकज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम को रमजान में इतना बड़ा रिलीफ प्रोग्राम एक तारीख साज इकदाम है जो मुस्लिम लीग नून का ही खासा है। कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को जितनी भी सहूलत दे सकते हैं हम दें, और उस सिलसिले में अभी उन्होंने रमजान शरीफ में मुफ्त आटा तकसीम करने का एक प्रोग्राम बनाया है। रमजान पैकेज के तहत 1,58,00,000 से ज्यादा घरानों को आटे की फराहमी की जाएगी, जिससे 10 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से महंगाई के हाथों परेशान माशरे के कमज़ोर तबक़ात के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रही हैं अस्का मकसूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से गरीब आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है और पंजाब भर में आटे की फराहमी के लिए 20,000 से ज़ायद पॉइंट्स कायम किए गए हैं। पंजाब भर में अब तक 70 लाख से ज़ायद 10 किलो आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। रमजान पैकेज के तहत 1,58,00,000 से ज़ायद घरानों को आटे की फराहमी की जाएगी, जिससे 10 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, परेशानी में आप लोग काम आए। जिन्हों गरीबों के लिए किया है, अल्लाह उनका भला हो, इज्जत दवे जिन्होंने गरीबा लेना के मुफ्त आटा दिता है। आधे घंटे में 2 तोड़े मिल गए, टाइम निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। हुकूमत की जानिब से पंजाब में 830 फ्लोर मिल्स को अब तक 53,691 मेट्रिक टन गंदम का कोटा दिया गया है और मुफ्त आटे की तकसीम 25 रमजान तक जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 29 मार्च से एक वक्त में 20 किलो आटे के थैले की फराहमी का ऐलान भी किया गया ताकि आवाम को बार बार आटा लेने न आना पड़े। शहरी 8070 पर मैसेज भेजकर आटे के हसूल के लिए अपनी अहलियत जान सकते हैं। रमजान स्पेशल पैकेज से गरीब आवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरखों पर बुनियादी अशिया की फराहमी जारी है। रावलपिंडी में सूरत हाल से मुतालिक बता रही हैं सदफ अफसल। मुस्तहिक अफराद को मयारी अशिया की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर सबसे बड़े और मुनफरिद 5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद बाकायदगी से जारी है। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए आटा, चीनी, दालों और मशरूबात समेत 19 बुनियादी ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। स्टोर पर जो हुकूमत ने सब्सिडी दी है तो ये आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इस महंगाई के दौर में काफ़ी चीज़ों पर उनको रिलीफ दिया गया है और वो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जो ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने किया है ना,
आईडी कार्ड के सिस्टम से, तो उससे ये फ़ायदा हो रहा है आवाम को कि आवाम के तक हर चीज़ यानी कि उन्हें बआसानी मिल रही है। माहाना खरीदारी के दौरान मुस्तहिक अफराद 3 किलो चीनी, 3 किलो घी और 20 किलो आटा खरीद सकते हैं, जबकि BISP रजिस्टर्ड सारिफीन को आटे का 10 किलो थैला 400 रुपये, चीनी 70 रुपये फ़ी किलो और घी 300 रुपये फ़ी किलो में फ्राहम किया जा रहा है। घी है 490 का सेल कर रहे हैं हम, चीनी है वो 91 में मिल रही है, हमारे पास जो आटा है वो 648 रुपये 10 किलो का हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत डिस्काउंट है, हर चीज़ पे बहुत आसानी से मिल जाता है सामान। गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि इस इक़दाम को मज़ीद भी आगे चलाएं। अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए स्टोर्स पर मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से फ्राहम किए गए रिलीफ पैकेज से सफ़ेद पोश तबका भी इत्मीनान के साथ रमज़ान की बरक़ात समेट रहा है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, रावलपिंडी। बलूचिस्तान के 34 अजला में शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर दिए गए रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं मीर सलाम जोगिज़ई। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को कम नरखों पर एशिया खुर्दनोश और दीगर जरूरी सामान की फराहमी तसलसल से जारी है। सूबे में यूटिलिटी स्टोर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को आटा, चीनी और घी 20 से 40% की खुसूसी डिस्काउंट की सहूलत भी मैसर है। इनके लिए चीनी जो से तकरीबन 70 रुपये किलो है, आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपये का, घी जो से इनके लिए 300 रुपये किलो है। इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में हुकूमत ने 19 अशिया पर सब्सिडी दी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं और हम सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान के आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस आवाम दोस्त पॉलिसी को सराहा और कोयटा समेत सूबे के दूर दराज इलाकों में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर सर्विसेज शुरू करने की भी अपील की। यहाँ पे रेट बहुत मुनासिब है, आटा, चीनी, घी खास तौर पे ये मुनासिब रेट पे मिल रहे हैं। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर भी होना चाहिए। सूबे भर में यूटिलिटी स्टोर पर वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज ईद उल फितर तक जारी रहेगा। मीर सलाम जोगेज़ई, PTV न्यूज़, कोयटा। पंजाब के तमाम शहरों में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, चावल, दालें और ज़रूरी अशिया रियायती नरखों पर फराहम की जा रही हैं। तफसील बता रहे हैं अवैस खटाना। वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के तहत 19 अशिया खुर्दनी रियायती नरखों पर फराहम की जा रही हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज से फ़ायदा हासिल करने वाले सार्फिन के लिए शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक रियायती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना है। रमज़ान पैकेज के बाद जिन अशिया पर रियायत दी गई इनमें आटा, चावल, चीनी, घी, दालें, दूध, खजूर और मशरूबात शामिल हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने फ्री आटा दिया पाकिस्तान में पूरी को, और हमें घी भी मिल रहा है यूटिलिटी स्टोरों पर, हमें चीनी भी मिल रही है। 5 अरब रुपए का जो पैकेज दिया है उससे हमें हर चीज़ सस्ती मिल रही है, आटा, चीनी, घी, दालें। सानू आटा भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही, घ्यो भी मिल रहा है। ये वज़ीर आज़म साहब का बहुत शुक्रिया जी कि उन्होंने साडे लिए रिलीफ पैकेज कढ़िया। वज़ीर आज़म ने जो रिलीज का ये पैकेज निकाला है, इसकी चीज़ें आटा, दाल, चीनी ये सब सस्ती मिल रही है। इसके अलावा ऐसे सार्फिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं वो यूटिलिटी स्टोर से मज़ीद रियायती नरखों में अशिया खुर्दनी हासिल कर रहे हैं। हुकूमत का मौजूदा महंगाई और रमज़ान मुबारक के बरकतों बड़े महीने में अवामुन्नास को बड़े पैमाने में रमज़ान पैकेज की शक्ल में रिलीफ एक ऐसा इकदाम है। अवैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के तमाम शहरों में सस्ते रमज़ान बाज़ारों का इनेकाद किया जा रहा है, जहां अरसा नरखों पर फल, सब्जियां और दूसरी अशिया दस्तियाब हैं। वकार अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। मार्केट से कम और मुनासिब रेट्स पर आवाम को बुनियादी चीज़ों की फ्राहमी ट्रेडर्स के ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताजरों की तरफ से रमज़ान बचत बाजार यकुम रमज़ान से पूरे सूबे में लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है गरीब तबके के लिए एक पैकेज है, वो आकर यहाँ से इस पैकेज से फ़ायदा उठाए। जो शहर में हर चीज़ हमें महंगा मिल रहा है, इन्होंने जो है सस्ता बाजार कायम किया उस्ताद मोहम्मद शहर में, हम इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शहर में हम गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ आइटम्स पर ताजरों की तरफ से भी सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। रमजान सस्ता बाजारों में बुनियादी जरूरत की अशिया, चिकन, मटन, बीफ, फ्रूट्स, सब्जियां, दालें और दीगर चीजों की कीमतें मार्केट रेट से कम रखने के साथ मयार पर चेक रखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल कमेटीज भी इंतजामिया और ताजरों के साथ मसरूफ हैं। रमजान सस्ता बाजार में कोशिश है कि मौजूद तमाम अशिया मार्केट रेट से कम और होलसेल रेट पर दस्तयाब हों। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। फैसलाबाद के दूसरे इलाकों की तरह तहसील जड़ावाला में भी मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। तफसील जानेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद से।
जड़ावाला के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हुकूमत पंजाब की तरफ से मुफ्त आटा स्कीम के तहत आटा तकसीम मरकज़ कायम किया गया है। इस सेंटर में आटा लेने के लिए आने वालों के लिए बेहतरीन सहूलतें मुहैया की गई हैं। अभी तक 50,000 से ज़्यादा के बैग दे चुके हैं और बाकी हम जो गवर्नमेंट ने बाकी SOPs दी हैं उसके मुताबिक फॉलो करते हुए हम इंशाल्लाह जो हमारी आवाम जितनी रजिस्टर्ड हुई है डेली जितने लोग आ रहे हैं हम उनको दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कम्प्लेक्स का दौरा किया और यहाँ किए गए इंतजामात का जायजा लिया। ये पाकिस्तान की पहली स्कीम है और कि मुफ्त आटा जो है वो 10 करोड़ के करीब जो घराने अफराद हैं उन तक पहुँचेगा और इसमें प्राइम मिनिस्टर खुसूसन उनकी हदायत है कि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। जड़ावाला एक बड़ी तहसील है, यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 11,000 बैग्स जो हैं वो ख़वातीन यहाँ से लेकर जाती हैं। इसमें 60 अरब रुपए के करीब सब्सिडी जो है डायरेक्टली आम लोगों तक पहुँचाई गई है। जड़ावाला में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अलावा मुफ्त आटा तकसीम के 5 मजीद सेंटर भी कायम किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से कम आमदनी वाले अफराद के लिए मुफ्त आटे की फराहमी इनके मुआशी मसाइल को कम करने में मददगार साबित हो रही है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जड़ावाला। शेखुपुरा की तहसील शरकपुर के 27,000 खानदान भी मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। तफसील मोहम्मद इस्लाम गाजी की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की जानिब से तारीख साज रमजान पैकेज के तहत तहसील शरकपुर के 27,000 खानदान मुफ्त आटे से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुफ्त आटा पॉइंट से अब तक 20,000 खानदान आटा हासिल कर चुके हैं। जिन्ना आटा इतना अल्लाह ख्याल करे। वज़ीर आज़म का शुक्रिया जी जिन्ना साढ़े माड़ियां दा ख्याल किया। आटा फ्री मिले है, शुक्रिया जिन्होंने दिता है कि साड़ी मदद की है। मुफ्त आटे के हसूल के लिए आने वाले अफराद के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं जिनमें से एक सेंटर 24 घंटे अवाम के लिए खुला है। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। खजूर से रोज़ा अफ्तार करना न सिर्फ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बल्कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर एक बेहतरीन नेमत खुदाबंदी भी है। मज़ीद तफसील जानेंगे पेशावर से अनवरुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। खजूर के बगैर अफ्तार की दस्तरख्वान का कोई तस्वर नहीं और यही वजह है कि बाज़ारों में सबसे ज़्यादा मांग खजूर ही की होती है। हर बंदा चाहता है कि मैं खजूर इस्तेमाल करूँ, इसके साथ अफ्तारी करूँ और एक तो सुन्नत भी है और बरकत भी है। पाकिस्तान खुद भी खजूर पैदा करने वाले ममालिक में से है, लेकिन आम तौर पर मार्केट में ज़्यादातर ईरान और इराक की खजूरें दस्तयाब होती है। दुकानदारों का कहना है कि पाकिस्तानी खजूरों के मुकाबले में ईरान और इराक की खजूरें निस्बतन सस्ती होती है। बाज़ साहिब सरवत अफराद अपनी दस्तरख्वानों को सऊदी अरब के अजवा, अंबर और मबरूम खजूरों से भी सजाते हैं। और चीज़ हो या ना हो दस्तरखान पर खजूर ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ रोज़ा तोड़ना एक सुन्नत है। खजूर ग़िज़ाइयत से भरपूर फल होने के साथ साथ ज़ोद आज़म हिज़ा भी है जो दिन भर भूखे प्यासे रहने वाले रोज़ादार को फौरी तौर पर क़ुव्वत बख्शता है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। पिंडी घेब से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ साबरी। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह पिंडी गेब में भी वज़ीर आज़म मुफ्त आटा स्कीम के तहत मुस्तहिक खानदानों में आटा तकसीम किया जा रहा है। पिंडी गेब शहर में एक मेगा सेल पॉइंट जबकि यूनियन कौंसिल सतह पर भी सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ी ख़ानदान 3 थैले तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने गरीब आवाम का ये ख्याल रखा। बहुत अच्छा कदम है हुकूमत का क्योंकि आटा की जो है वफ़र मकदार में पड़ी हुई है और लोगों को बआसानी आटा मिल रहा है। आसिफ साबरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पिंडी गेब। कौमी असम्बली के इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ वक्फा सवालात में वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने ईवान को बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों के बायस हमें आटा तक दरामद करना पड़ा। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने बताया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन और तबाह होने वाले घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपये जबकि जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के लिए 2.5 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर ममलिकत दाखिला अब्दुल रहमान कांचो ने ऐवान को बताया कि मुल्क में इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई कर रहा है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने सहाफ़ियों और मीडिया पेशावरों के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल 2023 पेश किया। इजलास में नौमंतखब रुकन असम्बली मोहसिन लगारी ने अपने अहदे का हलफ उठाया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने साबिक MNA लईक खान और मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों के इसाले सवाब और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ कराई। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں رمضان المبارک کے دوران بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی مسلسل جاری ہے۔ KMS کے مطابق غلام احمد گلزار نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز نے سحر اور افطار کے اوقات میں محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ مظلوم کشمیریوں کے دکھ درد کو محسوس کریں اور انہیں بھارتی جارحیت سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری، یاسمین راجہ، زمردہ حبیب، ڈاکٹر مصعب، جاوید احمد میر اور ایڈوکیٹ GN شاہین نے سری نگر میں اپنے بیانات میں انسانی حقوق کے ممتاز کارکن اور معروف قانون دان جلیل اندرابی کو 27ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے جلیل اندرابی کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلیل اندرابی کو مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے دستاویزی شواہد مرتب کرنے پر قتل کیا گیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فورم فرانس کے صدر مسٹر آصف جرال نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے اور صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کی بھی بلا جواز جیلوں میں قید کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم پر بھارتی حکمرانوں اور فوجی افسروں کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن کامیابی سے جاری ہے۔ 5ویں روز مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ لاہور سے رپورٹ کریں گی ہما صدف۔ 5ویں روزے کی افطار ٹرانسمیشن میں سائرہ نسیم نے خصوصی شرکت کی اور حاضرین کی فرمائش پر نعتیں سنائیں۔ دو عالم کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ۔ ماہر غذائیت ڈاکٹر ہنا نے شوگر کے مریضوں کے لیے غذائی علاج تجویز کیے، جبکہ کوئی سیگمنٹ میں MAO کالج اور دیال سنگھ کالج لاہور کے طالب علموں نے شرکت کی۔ احمد رضا قادری نے حاضرین کے ساتھ مل کر درود پاک کا ورد کیا۔ اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد۔ علماء کرام نے دعا کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ہادیہ ہاشمی کی نعت اور بچوں کو سنائی جانے والی کہانی نے حسب معمول داد سمیٹی، جبکہ سونے کے وقت سے کی جانے والی خطاطی خصوصی توجہ کا مرکز رہی۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ رمضان المبارک میں اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں عوامی مقامات پر لگائے جانے والے دسترخوانوں پر افطاری کے ساتھ بلا تفریق کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں نمرہ سہیل۔ رمضان المبارک میں جہاں روزہ رکھتے ہیں اور عبادت کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، وہیں اس بابرکت مہینے میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ روزہ داروں کو افطار بھی کرائی جائے۔ اسلام آباد میں مختلف مقامات پر عوامی افطار کا انتظام نہ صرف فلاحی مقصد کو پورا کرتا ہے بلکہ مذہبی لحاظ سے بھی انتہائی پر اثر ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے، یہ فی سبیل اللہ، یہ ایک انسانیت کی خدمت کے لیے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہم سفید پوش لوگوں کا برہم رکھا ان لوگوں نے، ان مشکل حالات میں بالکل بھی افورڈ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس کا۔ موسم چاہے جیسا بھی ہو، لنگر خانوں میں مغرب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے مخیر حضرات دل کھول کر روزہ داروں کے لیے افطار کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان دسترخوانوں پر عوام کے لیے افطار کے لوازمات کے ساتھ ساتھ کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ بارش ہوئے تو 150 گھٹ جاتا ہے، ویسے روٹین 4 سال 1000 دے اگے پیچھے بندہ آ جاتا ہے۔ غریب لوگوں کا افطاری دیتا ہے، یہ غریب لوگوں کے ساتھ امداد کرنا ہے۔ افطاری اچھی دے رہے ہیں، بہت خوشی سے ہم کر رہے ہیں، بہت اچھی افطاری کراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے اس افطاری کا۔ شہر بھر میں جگہ جگہ سجائے گئے عوامی افطار دسترخوان انسانیت اور اسلامی بھائی چارے کی اعلیٰ مثال ہیں۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں ماحول دوست اقدامات کے تحت ساحلی پٹی پر تمر کے پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تفصیل بتائیں گے سید جہانگیر علی۔ بجلی کے منفی اثرات کو کم کرنے اور درختوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے WWF پاکستان نے کراچی کی ساحلی پٹی پر تمر کے پودے لگانے کی مہم کا آغاز کیا۔ تمر، جسے مینگرووز کے نام سے زیادہ تر پہچانا جاتا ہے، دیگر پودوں کے مقابلے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کی 18% زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نہایت ماحول دوست ہوتے ہیں۔ بیچ کلیننگ وغیرہ اور جو مینگروو پلانٹیشن ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے جو WWF پاکستان
ریگولرلی یہ کرتے ہیں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری میرین کی پریکٹسز ہیں، اوشن پریکٹسز کی، یہ ایک لائف لائن ہے. مینگرووز کی افادیت یہ ہے کہ کینسر کے لیے اور ڈائبٹیز کے لیے اس کے اوپر ریسرچ چلیے کہ اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں. بعد میں سمندری آلودگی میں کمی اور ساحل کے تحفظ کے لیے صفائی مہم کا انعقاد بھی کیا گیا. ساحل سے کچرے کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو صفائی کی مجموعی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. درختوں کا تحفظ اور شجاکاری اور ان کی حفاظت ہر شہری کا فرض ہے، جس سے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد ملے گی. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. مغربی ہوائیں کل سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی، جو 29 مارچ کو ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں تک پھیل جائیں گی. 28 سے 31 مارچ کے دوران کوئٹہ، یوب، بارکھان، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے. بدھ اور جمعرات کو ڈیرہ غازی خان، راجن پور، بکھر، لیا، ملتان، ساہیوال، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص، حیدرآباد اور کراچی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے. کل سے 31 مارچ کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں بارش کی توقع ہے. اس دوران پشاور، چارسدہ، کرک، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، چترال، دیر، سوات، مانسیرہ، بنیر میں بادل برسیں گے. اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں چکوال، جہلم، خوشاب، میاں والی، سرگودا، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاودین، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، قصور، شیخو پورہ اور ننکانہ صاحب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر اور بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مٹھی کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. حیدرآباد میں بھی 36، ملتان 29، بے نظیر آباد 36 اور سرگودا میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت. سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے. اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 34، پشاور 29 اور کوئٹہ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال. خبرنامے میں کچھ بات کریں گے کرکٹ کی. شارجہ میں تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. افغانستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے. 11ویں اوور میں پاکستان نے 3 وکٹس کے نقصان پر 95 رنز بنا لیے ہیں. میچ PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. قومی ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں. اعظم خان اور نسیم شاہ کی جگہ افتخار احمد اور محمد وسیم کو شامل کیا گیا ہے. 3 میچز کی سیریز میں میزبان افغانستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. اور کھیلوں کی کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے محمد انیس. پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. ٹام لیتھم کیوی اسکواڈ کی قیادت کریں گے. نیوزی لینڈ کی ٹیم اپریل میں پاکستان آئے گی. دورے کے دوران 5 T20 اور 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گی. T20 میچز 14، 15، 17، 20 اور 24 اپریل کو لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے، جبکہ ون ڈے سیریز کا آغاز 26 اپریل سے ہوگا. پہلا ون ڈے راولپنڈی میں، جبکہ باقی 4 میچز کراچی میں ہوں گے. کراچی میں نیا ناظم آباد بینکرز کپ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ. ارحم CC نے مسلسل تیسری جیت کے ساتھ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ارحم CC نے گروپ C کے اپنے آخری میچ میں پیشن کرکٹ کلب کو 12 رنز سے شکست دی. 141 رنز کے جواب میں پیشن کلب کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 129 رنز بنا سکی. ایک اور میچ میں کینٹ واریئرز نے یک طرفہ مقابلے کے بعد مومن سیڈز کو 100 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا. مقابلے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پہلے آل پاکستان استاد اسلم روڑا رمضان المبارک ہاکی ٹورنامنٹ گوجرا میں جاری ہے. ایونٹ کے میچ میں ماڑی پیٹرولیم نے کسٹمز کے خلاف کامیابی سمیٹی. پولیس نے نیوی جبکہ واپڈا نے پنجاب رینجرز کو مار دی.
टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज से मुलाकात की। मुलाकात में ओलंपियन अरशद नदीम, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान, नायब कप्तान कौमी कबड्डी टीम शफीक चिश्ती, वर्ल्ड चैंपियन बीच रेसलिंग इनाम बट, नंबर एथलीट शजर अब्बास और दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने खिलाड़ियों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, कंडीशनिंग और दीगर जदीद सहूलियात देंगे। खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की खिदमात हासिल की जाएंगी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।